वेरी लॉजिकल डे टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं आज की न्यूज में इंडियन एक्सप्रेस में क्या दिया है एडिटोरियल्स में। सो द फर्स्ट वन इज इन फुल पब्लिक ग्लेयर। इन फुल पब्लिक ग्लेयर का मतलब होता है कि पब्लिक के सामने ओपनली क्या हुआ है। तो ये देखते हैं। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू यूएस एंड रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, इफ यू हैव बीन रीडिंग द फ्यू आर्टिकल्स इन द लास्ट फ्यू डेज, तो आपको पता होगा कि ट्रंप ने क्या कहा है यूक्रेन और रशिया के मामले में। ठीक है, ही इज वेरी अडामेंट अबाउट समथिंग, बट लेट्स सी हाउ दीज थ्री पीपल हैव come up in their discussions, you can say. So one of the key tenets of diplomacy is that differences between countries and leaders should be dealt with in private and agreements signed in public. ठीक है, तो ये होना चाहिए। जो लीडर्स हैं आपस में जब बात करते हैं तो वो प्राइवेट में बात होनी चाहिए, जब डील साइन होता है तो लोगों के सामने होना चाहिए। लेकिन इस मामले में हुआ क्या है, देयर ऑल दिस hostility has been viewed by the people, right? It open, so it is like in full public glare ये सारी बातें हुई हैं। अकॉर्डिंग टू द टेनेट्स ऑफ डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी की जो वैल्यूज होती हैं, जो प्रिंसिपल्स होती हैं, उसके हिसाब से सारी डीलिंग्स है। मैनेजमेंट भी ऐसे ही होता है। मैनेजमेंट इज एक्चुअल मैनेजमेंट टेक्स प्लेस बिहाइंड द डोर्स। व्हाट इज सीन इज जस्ट what they have decided, what was discussed, that never comes out in the open, but only the results would come and then the implementation of their decisions. That is what happens in management, right? So this is what he's saying, that according to diplomacy principles, what should happen is the discussion should be held in private and the outcome signed should be done in the public. Now, this is necessary to ensure and protect room for maneuver for all players. ये जरूरी क्यों है? ताकि प्राइवेट में जो बात हुई है, पब्लिक में ओपनली जो बात डील साइन करेंगे, इस बीच में सपोज कोई चेंजेस करने हो तो ये हो सकेगा फिर। सो दैट इज कॉल्ड इनफ रूम टू मैन्यूवर। तो थोड़ा बहुत वो चेंज कर सकते हैं। ऑन फ्राइडे द ओवल ऑफिस इन द व्हाइट हाउस, हाउएवर, the opposite was on display. The differences, political, geopolitical, personal, between US President Donald Trump and Vice President JD Vance on one side and Ukraine's embattled leader Zelensky on the other were aired in full global view. ये हुआ था। Full global view means in full public glare. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी, डिस्कशन जो इनमें थी यूएस और यूक्रेन के बीच में, ये ओपनली हुआ है। So the agreement on providing the US access to rare earth minerals is now on the back burner. अब इसे हमने थोड़ा सा बैक सीट पे दे दिया है, अब इसे हटा दिया है। ठीक है, now the meeting which saw Vance and Trump attack the Ukrainian president for not saying thank you and all but bullied for not having the cards is important for its implications for the conflict between Russia and यूक्रेन। इनके ये कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ फ्रेजेस जो इन्होंने बोले हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब। इनका इंटरप्रिटेशन, इसका implication, and it broadens the European security. It is also an illustration of a more fundamental disruption in the Trump era of diplomacy as usual, right? So what happened here is important for its implications, and it has become an illustration of the Trump era of the disruption, right? जो डिप्लोमेसी की होती है एज यूजुअल, इसने कहा है डिप्लोमेसी एज यूजुअल। और यही बात उसने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द टेनेट्स ऑफ डिप्लोमेसी होना क्या चाहिए और एक्चुअली में हुआ क्या है, जो कि डिप्लोमेसी के तहत ऐसा नहीं होना चाहिए। So the author's point becomes that diplomacy calls for being discreet, right? But they have not shown discretion in their discussions. So let's see now, whatever has happened has been completely in the public view, right? So the first point comes here is one, according to the tenets को follow नहीं किया, right? And in full view जो भी discussions थे वो full view में हुए हैं। So now there is no room and now there is problem in its implication. अभी हमें वो सोचना पड़ेगा इसकी implication क्या है और
क्यों ये इंपॉर्टेंट है ना? कमिंग अप विद द रेयर अर्थ मिनरल्स, ये बात की बात है। क्यों? क्योंकि और रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हुई थी रशिया के साथ, और इसी की वजह से ये यूक्रेन और रशिया के बीच में वर्किंग एज अ पैसिफिस्ट देयर, right? So this has come to the back burner. Like we read just 2 days back only about Russia and US. Now, the speed with which Trump has upended Washington's positions on Ukraine and diminished the transatlantic alliance has left many stunned. Has left many stunned का मतलब होता है सब अचंभे में आ गए हैं। किस स्पीड से जैसे ही ट्रम्प आ गए गद्दी पर, तो उन्होंने किस तरीके से ये सारी चीजें सॉल्व करनी चाहिए ना, फिर से वो जोश था करने का, राइट? सो बट देन व्हाट हैज ही डन? He has upended his position on Ukraine, and he has diminished his transatlantic alliance. So, what is happening now? Clearly, the US's external orientation is now visibly informed by Trump's domestic political compulsions. ये जो सेंटेंस होता है, देखो कई बार क्या होता है, हम जो sentences को समझते हैं, right? So this sentence comes up as an inference drawn on the basis of what is happening. ठीक है? Now, the attack on Zelensky reiterated issues and have become part and parcel of the Trump and camp's appeal to the mega base. That the American taxpayer is subsidizing Ukraine's war and Europe's security. ठीक है, अब देखो अगर वो मेक इन अमेरिका वाली बात को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर वो अमेरिकन को मतलब थोड़ा सा जैसे डी ग्लोबलाइजेशन वाली जो बात हम कभी पढ़ लेते हैं, वैसा अगर इन्हें करना है, तो व्हाट आर दे थिंकिंग इज दैट अमेरिकन टैक्स पेयर इज व्हाट इज ही डूइंग? ही सब्सिडाइजिंग यूक्रेन वॉर एंड यूरोप्स सिक्योरिटी, right? In this anti-interventionist pitch, Zelensky has been painted as a prime antagonist. Prime antagonist का मतलब होता है villain. तो जेलेंस्की हो गए हैं विलेन इनके हिसाब से। क्यों? क्योंकि अमेरिका अगर इन्हें हेल्प करता है यूरोप को और इनको यूक्रेन को, तो फिर कहाँ से आता है पैसा? अमेरिकन टैक्स पेयर से। So Zelensky has been painted as a prime antagonist. It also appears that Trump is willing, if not quite ready, it appears, ये हो जाता है हमारे पास जे जजमेंट। ध्यान रखना जब हम सेंटेंसेस को एफआईजे के हिसाब से देखते हैं, तो जो डायरेक्टली स्टेटेड होती हैं चीजें वो होता है फैक्ट। दिस इज हाउ द इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन एंड दिस इज व्हाट द क्लेम और द जजमेंट और द कंक्लूजन इज, राइट? सो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। इट अपीयर्स दैट ट्रम्प इज विलिंग, इफ नॉट क्वाइट रेडी, टू पुल द प्लग ऑन यूएस सपोर्ट इन द कॉन्टिनेंट। इसका मतलब अगर वो चाहे, ऐसा लग रहा है कि वो चाहें या जब उनकी मर्जी होगी तब वो अपना सपोर्ट हटा देंगे, यूक्रेन को अपना हेल्प डिसकंटिन्यू कर लेंगे, राइट? Now, the rapid unsettling of the transatlantic alliance in place since World War II has placed Europe in a profound crisis. अब उसका implication क्या होगा? पता नहीं कब यूएस ने अपना हाथ पीछे कर लिया, अगर अपना सपोर्ट नहीं दिया यूरोप को या यूक्रेन को, तो फिर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यही सोच के यूरोप इज देयर लाइक apprehensive there. Now it finds itself in a profound crisis. Soon after Zelensky left the US, the summit level meeting of European leaders was held in London, in which UK PM Keir Starmer and French President Emmanuel Macron spoke of an alternative peace plan for Ukraine, which they will present to Washington. ठीक है, तो इन दोनों की मीटिंग हो गई, फिर यूरोपियन लीडर्स ने मीटिंग कर ली, और यूरोपियन लीडर्स ने मीटिंग की, this becomes a fact. Now you can see what I'm doing in this article today, trying to come up with the fact and the inferences and the judgments. You should be able to understand this, क्योंकि critical reasoning, logical reasoning के हिसाब से अगर ये चीजें आ जाती हमें समझ में, तो फिर arguments पे पहुंचना आसान हो जाएगा, arguments पहुंच conclusion पे पहुंचना आसान हो जाएगा, inferences derive हम कर सकेंगे, premises जो stated हैं we'll be able to understand. Now, another special summit for Ukraine and European defense is to be held in, again, Brussels on March 6. Two things are clear from the reactions in Europe since the Trump-Zelensky meeting fiasco. First, Europe must be ready to do more of heavy lifting with Washington threatening to withdraw.
मतलब अब क्या कर सकते हैं, ये 2 मीटिंग्स तो होंगी, एक हो गई, दूसरी होने वाली है 6 मार्च को। चीजें क्लियरिटी के साथ क्या दिखाई दे रहा है हमें कि यस, यूरोप हैज टू टेक अप सम और द अदर हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। हेवी लिफ्टिंग उसे करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका कभी भी विड्रॉ कर सकता है अपना सपोर्ट, इस डर से। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, ऐसा नहीं, जब कर लेगा सपोर्ट वापस तब हम देखेंगे, नहीं। यू हैव टू कम अप विद प्रिवेंटरी मेजर्स देयर, राइट। तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव कि इफ अमेरिका प्लान्स टू डू दिस, देन व्हाट इज यूरोप गोइंग टू डू। तो उन्हें प्लान तो करना ही पड़ेगा अपना रिस्पॉन्स कि क्या करेंगी फिर। सेकंड, और ये करना ही पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट दे मस्ट बी रेडी टू डू दिस। Second, for all the voices in support of Ukraine and Zelensky, Europe realizes that it still needs the US for any peace plan to succeed. दूसरा ये realization हो गया कि यार हम कुछ भी कर लें, यूएस का सपोर्ट तो हमें चाहिएगा ही सही। ठीक है, तो फर्स्ट उनका रियलाइजेशन हुआ कि दे हैव टू डू समथिंग more visible if US doesn't support. Second, they realize that yes, they in any case they need the support of US. Now, the public attack on Zelensky and its aftermath is an indication that international relations are going through a churn in both form and substance, right? International relations again change होते जा रहे हैं। churn है ना, ऐसे ही जैसे मथना होता है ना, तो जो दही होती है, कर्ड्स होता है, that is churned, like this the mind also churns। तो पूरी सारी बातें, जितने थॉट्स होते हैं, सबको ऐसे घुमा फिरा के वो कुछ ना कुछ फिर नतीजा उसमें से निकलता है, जैसे मलाई में से घी निकलता है या मक्खन निकलता है, सॉरी घी तो बाद में निकलेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड चर्निंग, और इट इज अ माइंड चर्नर। ऐसा कोई प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आ जाता है, ठीक है, सो वे यू नीड टू लाइक यू जस्ट नीड टू रैक योर ब्रेन्स देयर, सो दैट इज अ माइंड चर्नर। So here also it is happening. The international relations are again going through a turmoil. So given that the US continues to be the preeminent economic and military power, leaders and diplomats must now learn to deal with the volatility and politicization of interstate ties. Again, this comes up as a point that yes, UN is an important factor there. In all the decisions in the world, the US has a very important prominent place there. But then, because if US changes its minds, the geopolitical ties also would change. और ये जो वॉलेटाइलिटी है इनके रिलेशंस में, अलग अलग कंट्रीज के आपस के रिलेशंस में, ये जो चेंजेस आ जाते हैं ना, जैसे डिप्लोमेटिक चेंजेस हो या स्ट्रेटेजिक चेंजेस हो, ये प्रॉब्लम करेगा। एंड देयरफॉर दे हैव टू लर्न हाउ टू डील विद दिस। So they now learn, they have to learn to deal with the volatility. In Europe, the task appears to be one of developing a new architecture for how it approaches the world and its place in it. So Europe, because it is still apprehensive whether US is going to help it or no, whether US is going to carry on with its alliance with Ukraine and the European countries or no, यही इतना skepticism है, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो they need to come up with or develop a new architecture for how it approaches the world and its place in it. The US may no longer be everywhere on the global stage to back it up. ठीक है, प्लेस इन इट में अभी इसके बाद उसे क्लैरिटी के साथ सेंटेंस दे दिया कि हर जगह पे यूएस यूरोप के साथ रहेगा नहीं। क्यों? पूरा पैसेज ही इसी के बारे में है कि यूएस ने अगर कुछ ठान लिया, यूएस हो सकता है कि यूरोप का साथ ना दे इस मामले में, एंड इट वुड गो विथ रशिया, पॉसिबिलिटी इज देयर। So what will Europe do, or what can Europe do, or what must Europe do? It has to prepare itself for such a situation. That is the whole point that the author is stating. So it must find ways to engage with Russia on its terms and more broadly make its agreements with other powers even as it tries to keep the channel open across the Atlantic. इसका मतलब यूरोप यूएस से एकदम कट के अलग नहीं हो जाएगा. It is not going to sever the ties with US. It has to keep the channel open. You can't just burn the boats behind you, no. So it has to keep the channel open across the Atlantic, but yes, it has to learn to deal on its own with Russia too. तो अब हमें समझ में आ गया कि ये पैटर्न चल क्या रहा है. यूएस रशिया के साथ, यूएस यूक्रेन के से अलग. ठीक है, यूक्रेन को उसने एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्टिक एक एनिमी टाइप का इमेज दे दिया. ठीक है, बढ़िया.
लोग अब यूरोप के सोच रहे हैं कि what is US going to do, right? Whether it is going to be there. US has declared Ukraine as antagonistic. Now, because this is so, what about the alliance? Right? Now, if you talk about the alliance, then Europe is worrying. ठीक है, यूरोप वरी कर रहा है कि पता नहीं क्या होगा, you don't know. उसे अगर नहीं पता है तो इसलिए इट हैज टू बी, मतलब यहाँ पे ये स्केप्टिक है कि हेल्प करेगा यूएस या नो. ना देन इट हैज टू बी लाइक इट हैज टू प्लान and it is realizing and it has to do something on its own, right? But it has to come up with US. ऐसा तो रहेगा ही सही कि यूएस के साथ रहेगी, पर फिर भी उसे कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से प्लान करना चाहिए कि मैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल करूं. So let's see now what we just marked. Okay, this is necessary to ensure and protect room for maneuver. So what is necessary? That was the first point of the author, that according to the tenets of diplomacy, what should happen? This discussion should have taken place behind closed doors, not in front of the world. Now this agreement is now, अच्छा ये भी एक हिंट था, एक सब पॉइंट हो जाती है, छोटी सी पॉइंट हो जाती है, ठीक है, ये दोनों मिला के एक .1 और .2 हो जाती है स्मॉल वंस, राइट? And this too, third. But where is the major point? That Trump has not followed these diplomacy principles, and let us now see the implications of this conflict. ठीक है, अब हमें सोचना पड़ेगा क्यों, क्योंकि जो भी हुआ है इट हैज बीन वेल ऑन डिस्प्ले, पूरा क्लियर हो गया है, राइट? नाउ दिस position, this stance taken by Washington has been surprising for many. Again, point to be taken here. It appears that because it has been a surprise factor, it appears now that US can go against the European alliance also. It can break that alliance any day. तो अभी कभी भी कर सकते हैं ये यूएस के खिलाफ, यूएस कभी भी ईयू के खिलाफ जा सकती है, यूरोपियन अलायंस के खिलाफ. इट इज स्टिल nothing is sure. Now this rapid unsettling, again now the implication, यूरोप इज देयर इन अ प्रोफाउंड क्राइसिस, क्योंकि पता ही नहीं है कि यूएस हेल्प करेगा या नहीं, तो यूरोप कैसे आ गया, वापस क्राइसिस में आ गया, राइट? और ये एहसास हो गया अब ईयू को कि उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. ईयू स्टेप्स टू टेक, ये अभी रियलाइजेशन हुआ है कि इट हैज टू टेक अ फ्यू स्टेप्स, राइट? अगेन दिस बिकम्स अ पॉइंट. They are going through a churn, ठीक है, ये भी सही है, and it must find ways, again the same thing, right? Now see the main points, US plus EU is still questionable. अभी पता नहीं है हमें कि यूएस साथ देगा भी या नहीं ईयू का या यूरोप का, यूरोप लिख लेते हैं, ठीक है, and therefore it is a crisis for Europe, right? And therefore it is going to prepare for its crisis because it is not sure for future, उसे करना ही पड़ेगा. It is not sure whether US is going to be with it, तो उसे steps तो लेना ही पड़ेगा, तो it has to find out ways and means, ठीक है, with or without US, दोनों तरीके से. अब देखो हमने और शॉर्ट कर लिया अपने मेन आइडिया को, समझ में भी आ गया कि ये पूरे पैसेज में डिस्कस क्या किया है. So showdown in White House, the world made smaller. Differences, political, geopolitical, personal, between US Donald Trump on one side and Ukraine's embattled leader Zelensky on the other were aired in full global view. ये इसका मेजर प्रॉब्लम था कि ये full global view में है, and therefore the world has become smaller, right? And apart from all this, EU is going to prepare. It has to prepare now. It is to be ready to prepare itself for future, considering that US may or may not help in solving the problem of Ukraine and Russia.
Now, coming up with the vocabulary part, right? Tenets के लिए you can write values and principles. प्रिंसिपल्स PLES वाला आएगा क्योंकि प्रिंसिपल PAL वाला प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो मेन होता है, स्कूल का प्रिंसिपल जो होता है वैसा, दिस इज PLES. ठीक है. Embattled leader means the leader who is still there in the battle. On the back burner समझा चुके हैं, it is taken a back seat, it is not the in the limelight, नहीं, it is not of major importance right now, right? एक दिन में 2 दिन में वापस आ जाएगा ये. ऑल बट बुलीट, यहाँ पे बट का यूज समझ लो, बट का कई बार यूज होता है एज एन एक्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल एक ईडियम होता है, ही टुक एवरीथिंग बट द किचन सिंक. ठीक है, मतलब ऐसे ये ईडियम है, इसलिए इसको समझना ऐसा होता है कि घर का पूरा सामान ले लिया उन्होंने बट द किचन सिंक, मतलब सिर्फ किचन सिंक नहीं लिया तो वो इसी को छोड़ा. इसका मतलब कई बार ऐसे होता है कि व्हेन यू गो ऑन अ ट्रिप यू टेक स्मॉल 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 मेनी थिंग्स यू टेक. कभी ये काम आ जाएगा तो अजम्पशन सब देखो, कभी ये काम आ गया तो कभी वो काम आ गया तो somebody would take a needle and thread, somebody would take scissors, somebody would take something or the other. There are many, many small things that you or your parents would keep while you're traveling, right? Or assuming that someday or the other, or sometime maybe you will need it. So when you take so many things, तो तब कहते हैं कोई कई सारी तो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स भी ले लेते हैं कि चलो बस ये सोच के कि कभी काम आ जाएगा. तो यहाँ पर ये एक इडियम काम आ जाता है, ही टुक एवरीथिंग बट द किचन सिंक. ठीक है, मतलब किचन सिंक के अलावा बाकी सब उसने रख लिया है अपने पास. तो इस तरीके से बट का यूज होता है एज अ यूज ऑफ एक्सेप्ट. नाउ डिसरप्शन, आई विल टेक दिस एज अ रूट वर्ड नाउ. सो आई थिंक आई हैव टेकन दिस अर्लियर बट दोज हु हैव नॉट बीन फॉलोइंग तो जरा फॉलो भी करें. रप्ट का मतलब होता है ब्रेक. ठीक है, आई सी इफ देयर इज स्पेस ऑन द अदर साइड. हाँ, आई विल टेक इट हियर. रप्ट मीन्स ब्रेक. So you have the word rupture, disrupt, again disruption, how the word is formed, right? And as I've say, I've taken in the YouTube sessions also, I've taken root words. तो आप प्लीज उसको फॉलो करेंगे. ठीक है, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक वर्ड से हम वर्ड की ट्री कैसे बना सकते हैं. अभी तो आई एम राइटिंग इट इन दिस मैनर बट इन योर नोटबुक्स यू कैन राइट इट एज अ ट्री फॉर्मेशन और अ सन फॉर्मेशन. सो रप्चर, डिसरप्ट, डिसरप्शन हो जाएगा. वैसे ही इंटरप्ट होता है एंड इंटरप्शन. ठीक है, इंटरप्शन हो जाएगा. राइट. देन एब्रप्ट हो जाता है एकदम से, सडन. एब्रप्ट मीन्स सडन, right? So you then more words as you get related to RUPT, then you can come up with writing on the same page. पर अपने नोटबुक बनाना जरूर. I have been telling this repeatedly in all my sessions. Now, the speed with which Trump has upended Washington's position on Ukraine, ये हो गया था. Stunned का मतलब होता है aghast, यूज होता है एक वर्ड. He stood there aghast with disbelief. तो डिसबिलीफ इसलिए यूज कर रहे हैं कि इतने सरप्राइज थे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है. एक सरप्राइज फैक्टर उसमें ज्यादा होता है कि यार मतलब शॉकिंग वाला, अमेज अलग हो जाता है, ये शॉकिंग ज्यादा है इसमें. उसे स्टंड यानी मेरे को जैसे ना सांप सूंघ गया, ही स्टूड दे स्टंड, मतलब उसको आप रिलेट करो ऐसे सन से. तो मतलब ऐसे सन से किसी के मतलब जैसे थ्रिलर सीन चल रहा है कोई और यहाँ से ऐसे गोली पास हो जाती है तो ही स्टूड देयर स्टन्ड एट व्हाट हैपेंड, वैसा वाला आ जाता है ये. ठीक है, तो एक फैक्टर, एक एक सरप्राइज वाला और एक डिसबिलीफ वाला फैक्टर उसमें ऐड हो जाता है, एलिमेंट ऐड हो जाता है. चलो, रीइटरेटेड का मतलब होता है रिपीटेड. सब्सिडाइजिंग, ये तो समझ में आ जाता है.
एंटागोनिस्टिक का बस एक वर्ड बता रही हूँ, एंटा इज ऑपोजिट. अब एंटा या एंटाई का मतलब होता है ऑपोजिट, पर आई एम गिविंग यू वर्ड अकॉर्डिंग टू एंटागोनिस्टिक ओनली. तो एंटा इज विलन, एंटागोनिस्टिक विलन समझ लो. अब एंटागोनिस्ट आईएस के एंडिंग वर्ड तो पर्सन होता है, राइट? अब इसकी जो फीलिंग होती है वो होता है एंटागोनिज्म. तो एंटागोनिज्म के मीनिंग्स दे रही हूं अभी मैं, ठीक है? अब उसके मीनिंग्स के हिसाब से लिख लेना. हॉस्टिलिटी, देयर इज अ फीलिंग ऑफ राइवलरी, एंड आई एम श्योर यू हैव रेड दीज वर्ड्स. जिसे नहीं लिखे हैं, इसके पहले भी मैं दे चुकी हूँ, जिसे नहीं लिखे वो फटाफट लिख लेना. पर हॉस्टिलिटी, राइवलरी, विरुलेंस, एनमिटी, पग्नेसिटी, bellicosity एंड बेलिजरेंस. ठीक है, अब ये है एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं होते हैं, ये विद राइजिंग इंटेंसिटी वाले वर्ड्स होते जाते हैं. तो एंटागोनिज्म तो ठीक है, एनमिटी थोड़ा सा कम होगा, राइवलरी मतलब हो सकता है एक दूसरे को मारने के उतारू नहीं आ जाएंगे, वो मारने के लिए नहीं दौड़ेंगे, पर फिर भी रहता है वो फीलिंग. बेलिजेंस और बेलिकोसिटी में एकदम मारने के लिए आ सकते हैं, वो अग्रेसिव हो सकते हैं. सो ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड with a different intensity of emotion here, right? So, to pull the plug on means to discontinue. अपना हाथ पीछे ले लेना या तो फिर डिसकंटिन्यू कर देना या प्रिवेंट कर लेना, ये हो जाता है हमारे पास. So, it all turned out to be a fiasco. Fiasco is like a failure, unsuccessful, or a failure. नहीं कर पाए आप कुछ काम. कई बार ऐसा फेलियर होता है जहां पे एम्बैरेसमेंट ज्यादा होती है. It turned out to be a fiasco. ठीक है, to do more of the heavy lifting का मतलब they'll have to come up with their own responsibility a little more. Responsibility to be taken, यहाँ पे आप समझ सकते हो इस फ्रेज का मीनिंग. ठीक है, then going through a churn, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है. Why I have written it is going through a churn is like changes happening, but then this is a phrase that you can write it, right? Volatility again is a quality that stands for something that is not for a long time. तो वॉलेटाइल, मार्केट इज वॉलेटाइल नाउअडेज, कभी कम कभी ज्यादा एकदम से चढ़ जाता है या हो जाता है. ठीक है, तो वॉलेटाइलिटी का मतलब होता है शॉर्ट टाइम. ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अब इसी के लिए आप टेम्पररी कर सकते हो. नाउ आई एम गिविंग यू रिलेटेड वर्ड्स टू इट, राइट? शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, ट्रांसाइंट होता है. ठीक है, एफर्वेसेंट यू कैन राइट, and then fleeting you can say. ठीक है, then to back it up, इसके साथ हम और मर्क्यूरियल भी लिख सकते हैं, मतलब इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं. वैसे वॉलेटाइल है तो मर्क्यूरियल हो सकता है. to back it up is to support, and again why I've marked it is to keep it as a phrase only, and to engage with. अब आप देख सकते हो phrases उनको बोलती हूँ mainly which starts with a preposition and ends with a preposition to. तो ये ऐसे कैसे ही चलते हैं. To back something up is to support somebody. To engage with Russia, to be engaged with someone, to engage in something. ऐसा होता है. Why the phrase is changed? You are engaged in means absorbed in, engrossed in. ठीक है, तो engaged in लगाएंगे, engage with someone हो जाएगा फिर. ठीक है, तो engage with Russia on its terms.
Gradually, you will be able to identify the phrases too. चलो इतना आज का डिस्कशन तो हो गया. अब ये है एक एन एजुकेशन फॉर द रियल वर्ल्ड. एक ही आर्टिकल है. एक स्मॉल फिल्म बिग सिनेमा. अनोरा है एक मूवी जिसे ऑस्कर में काफी कुछ मिल गया है. अवार्ड्स काफी मिले हैं. तो यू हैव टू लाइक यू कैन रीड अबाउट दिस आर्टिकल. और वैसे भी जीके में भी तुम्हें ये सब काम आ जाएगा. ठीक है. और एक ये है द वे टू प्रोटेक्ट ओरन्स. ओरन्स होते क्या है ये समझ में आ जाएगा जब हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे. तो ओरन्स होते हैं वो फॉरेस्ट जो नेचुरल फॉरेस्ट है राजस्थान के. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट recognizes Oran lands as forest and the Forest Conservation Act issues directions to protect sacred groves of Rajasthan. ये अभी रिसेंट में हुआ है. इसीलिए आप इस पे अगर पढ़ेंगे तो आपका एनवायरमेंट वाला जॉनर इससे हो जाएगा आज की तारीख में डन. ठीक है. यहाँ पे इतना क्लैरिटी नहीं होगा लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रिचेस और ये सब हैं. कुछ ऑस्ट्रिचेस नहीं है आई थिंक. तो दूसरी बर्ड्स हैं माइग्रेटरी बर्ड्स जो आ जाती हैं कभी साइबेरिया से. सो now this is another article from the Hindu. How is China's foreign policy structured? ठीक है. तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे इट इज अ लेंदी आर्टिकल बट इफ यू रीड इट देन नाउ इन टुडेज डेट यू विल बी रीडिंग से 3 to 4 जॉनर्स. अगर आप इतने आर्टिकल्स भी पढ़ लेते हो नो मैटर वेदर एग्जाम्स हैं तुम्हारे या कुछ भी हैं तो ये तो मिनिमम आर्टिकल्स आप पढ़ ही लेना. दिस इज व्हाट आई सजेस्ट. सो इफ यू रीड दिस समझ में आ जाएगा कि चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से बना रही है और इम्प्लीमेंट कर रही है. सो थैंक यू फॉर गोइंग थ्रू ऑल दिस एंड स्टेइंग विथ मी. And stay logical, stay positive, and see you soon.